Being an English literature student, did I ever think of attempting UPSC? Yes, I did. And at one point of time I was actually brainwashed कि नहीं तुम ही तो हो, तुम ही बनी हो यूपीएससी करने के लिए, like every other Indian kid, especially लाइक यूपी बिहार झारखंड ये वाले एरिया में लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि नहीं, अगर आपका 11th 10th 12th में आपका कुछ नंबर ठीक ठाक आ जाए तब तो यू थिंक नहीं हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता. एंड यू एंड योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली हैज़ लाइक पुट यू ऑन दैट पेडेस्टल कि नहीं अब तो बच्चा कर ही सकता है. So yes, being an English literature student, I'll tell you why did I take English literature. Just because I was told English में पढ़ना नहीं पड़ता. So मैं शेयर करूँगी अभी ये. So it begins when did I actually start preparing? I haven't attempted any UPSC exam or any competitive exam for that matter except NET and CUET. Yeah, and also I've attempted JEE at once and mains both. We'll talk about it later. So what happened ki I come from Jharkhand. You should know the state and the kind of family that I come from. Because of course you cannot generalize state. I am so sorry for that. Because whenever I say these things, I have to be conscious that I don't generalize things. Okay, so I come from Jharkhand. वहाँ पे स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज़ में आपको जॉब सेंट्रिक होते हैं लोग, जल्दी से जॉब पकड़नी है, एजुकेशन तो कम है, डेवलपमेंट कम है, और एजुकेशन मिलना इज़ अ प्रिविलेज. लाइक आई एम अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर एंड आई फाइंड माई सेल्फ प्रिविलेज बिकॉज like even in my extended family, like they did go to school but not English medium, and I got English medium school, and I find myself fortunate. मतलब they got married at like 23 22, so I find myself privileged because मैं उतनी उम्र की हूँ and I'm still studying, so it's actually a privilege and I feel so happy about it and confident about it. But yes, I am so sorry for again, like I always be sorry, so sorry. Yeah, so what happened कि I come from झारखंड जहाँ पे लोग जॉब सेंट्रिक, अगर पढ़ भी लिया तो जॉब जल्दी करनी है. PhD people don't know. My family didn't know PhD, what is PhD, or maybe details of it until and unless I am doing it. Like now I'm doing it, now they know everything, but before they didn't know that. And academics is like far ahead. Till bachelor's only you engage yourself in academy and then you prepare or maybe you do job ऐसा कुछ. Now 10 तक तो I was like I thought कि मुझे medical करना है, but then I got into scholarship 11 12 में. 11 12 was a chapter. I can write a novel on that, I feel. Okay, yeah, so if you want a story on how my 11th 12th was, I can actually present it. I would love to bitch about it. Yeah, okay, so what happened ki after 10th तक medical and 11 12 I got into a scholarship, and it was basically for IIT, and it covered all the expenses of fooding, lodging, and schooling, coaching, everything. So it's like a scheme in Jharkhand, which you can maybe find out. So they take people, and it is actually very great scheme for people who are underprivileged, and at least like people who cannot afford IIT and ये सब की coaching, and of course you have to like clear exam for that. ऐसे नहीं होता है, तो exam clear करना पड़ता है, and around like 5 to 6 to 7,000 people attempt for it, and 11 boys 11 girls for the first category and 11 boys and 11 girls for the second category ऐसा selection होता है. Now I don't know, they have like changed or something, I have no idea about right now. So yeah, but it's exceptionally good because people are getting placed in it. Teachers are also good. Good, yes, question mark. Now, so what happened, that was there कि 11 12 10 तक medical, 11 12 coaching कर लिया, and then I came to know कि I'm not meant for engineering. I don't like science.
आई कांट अंडरस्टैंड फिजिक्स. मेरे -1 आए थे जेई एडवांस में. तो it was a nightmare. It was actually a nightmare for me. And then 11th-12th के बाद I didn't know what to do. I didn't know what to do. घर वालों ने बोला ठीक है तैयारी कर लो. एंड आई वॉन्टेड टू टेक केमिस्ट्री. मुझे BSc करनी थी केमिस्ट्री को लेके. एंड माई ब्रदर वॉज लाइक क्या करोगी उसको लेके, ट्राई फॉर अदर थिंग्स, ट्राई फॉर कॉम्पिटिशन. मेरे फैमिली कॉम्पिटिशन के लिए थे. इट लास्टेड फॉर 1 or 2 years. आफ्टर दैट दे डिडंट टेल मी एनीथिंग. इट्स लाइक यू डू वट एवर यू वॉन्ट टू. बट एट दैट टाइम इट इज मोर लाइक कि और घर वाले भी बोल रहे हैं. आई पर्टिकुलरली आई डिडंट नो वट टू डू. सो नो what happens then, your family starts to take decision for yourself because you are not aware of what you want to do. They'll suggest you that you can do this, maybe you can do that. So उस टाइम पे competition was like कि हाँ competition करते हैं. BHU का फॉर्म गलती से भर दिया था and then I got in. I was happy कि चलो ठीक है कुछ तो हुआ. like मुझे तो लगा जेवियर कॉलेज भी मुझे नहीं लेगा. उसका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं कर पाई मैं, जेवियर रांची का. यस मैं क्लियर नहीं कर पाई. नहीं, या फिर उसका सेकंड लिस्ट आउट नहीं होता. आई डोंट नो, फिर मे भी छोड़ो हटाओ. तो यस तो ऐसा था कि ये हुआ कि मुझे लगा कि यार अब कहाँ जाएंगे. BHU निकल गया गलती से. दैट वाज लाइक गुड पार्ट दैट देयर समथिंग एटलीस्ट. एंड मुट्ठी ये था कि अब कौन सा सब्जेक्ट लेना है. विच सब्जेक्ट शुड आई टेक. कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा होगा, कौन सा सब्जेक्ट में अच्छा होगा. सो लाइक मैंने ह्यूमैनिटीज़, अब शुरू में मुझे था केमिस्ट्री लेने का. बट घर वालों को उतना पता भी नहीं है. भैया ने बोला कि उसका मैथ्स था. सो भाई ने बोला कि केमिस्ट्री लेके क्या करोगी तुम, क्या तुमको करना है आगे जाके, ये सोच के करो, इससे अच्छा कंपटीशन के लिए करो, ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट ले लो. अब ह्यूमैनिटीज़ में मुझे कुछ नहीं आता. मुझे हिस्ट्री पसंद थी, आई नो एट 10th, जब व्हेन आई वाज इन 10th. एंड देन आफ्टर दैट इंग्लिश मुझे थोड़ा बहुत ठीक लगता था. आई रिमेंबर व्हेन डिड आई हैड लाइक इंटरेस्ट इन लिटरेचर. इट स्टार्टेड विथ मर्चेंट ऑफ वेनिस. 10th क्लास में मर्चेंट ऑफ वेनिस था हमारा. तो या that is the only thing that I remember where I understood literature, maybe enjoyed it. Yeah, and now I do enjoy. I love literature, though I'm not good at research or something. I'm not, but I love literature. I think everybody does. Most of the people do at least. Yeah, so तो उसके बाद क्या हुआ कि अब BHU हो गया. एंड सोचा कि इंग्लिश ले लेते हैं क्योंकि इंग्लिश ठीक लगता है तो ले लेते हैं. और क्या था कि इंग्लिश में पढ़ना नहीं पड़ता. ये मुझे बोला मेरे ब्रदर ने कि पढ़ना नहीं पड़ता उसमें, तो तुम ले सकती हो, यू कैन टेक, और तुम एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना. सो आई टेक लिटरेचर बिकॉज उसमें पढ़ना नहीं पड़ता. उसके बाद अब जाना क्यों था, क्योंकि पढ़ना नहीं पड़ता तो अपना कंपटीशन का तैयारी करना. यू हैव टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन. जाओ तैयारी करना, किताबें लो. तो आई वाज लाइक सीरियस कि नहीं, हाँ करना है मुझे, कंपटीशन करना है. लक्ष्मीकांत ले ली सबसे पहले. लक्ष्मीकांत इंसान लेता है. सो लक्ष्मीकांत और सारी NCERTs वगैरह लेके रख लिया मैंने. और मेरी जो रूममेट थी बैचलर्स में, शी इज़ वेरी नाइस. लाइक शी इज़ वेरी नाइस. वो दिन भर पढ़ती रहती थी. शी वॉज इन मास्टर्स इन इंग्लिश एंड आई वॉज बैचलर्स इंग्लिश. सो शी यूज टू स्टडी लाइक व्हेन आई वोक अप एट 4 o'clock. शी यूज टू स्टडी. मतलब 4 बजे भी वो पढ़ रही होती थी. वो बहुत पढ़ती थी. एंड आई थिंक समवेयर शी हैज़ अफेक्टेड मी अ लॉट in the sense that I got motivated, like inspired. I'm inspired from her. She was very nice. Like she was also from Jharkhand. Yeah, she was from Jamtara, I remember. So yeah, तो अब वहाँ पे मैं पढ़ तो पा नहीं थी. फर्स्ट ईयर बैचलर्स इंसान पढ़ेगा. कॉलेज स्टार्ट है, पहली बार घर से बाहर निकले हैं. अब तो मज़े करेंगे, अब तो सबसे दोस्ती करेंगे. एंड मतलब ऐसा था कि पढ़ाई छोड़ के सब करना है. बट एट द सेम टाइम घर से भी ये था कि पढ़ रही हो कि नहीं, कंपटीशन के लिए पढ़ रही हो कि नहीं. इधर तो मैंने कुछ स्टार्ट भी नहीं किया, पढ़ाई तो छोड़ ही दो. तो वो था कि मैंने छोड़ दिया था. थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, बट लाइक इट वॉज लाइक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट,
एंड देन कम्स कोविड। एक सेमेस्टर बीता, उसके बाद आ गया कोविड। अब कोविड के टाइम पे सब घर वापस गए। मुझे याद है होली पे गए थे, होली के बाद होली पे घर गए और घर ही रह गए। सो नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, इट हैज़ एक्चुअली ले लिया उसने सारा कॉलेज लाइफ मेरे हिस्से का। दैट्स सैड, इट्स फाइन। सो अब घर गए वापस से वो ब्रेन स्ट्रॉमिंग, ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट हो गया कि तुम तैयारी करो, अभी तो छुट्टी है, अभी पढ़ो, एंड लाइक प्रिपेयर फॉर इट, प्रिपेयर। अब मैंने सीरियस वाला तैयारी स्टार्ट कर दिया था। मैंने ऐसे सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ के उड़ा दी और सभी सब्जेक्ट्स के पढ़ के उड़ा दिए। नोट्स बनाने लगी थी मैं, पता नहीं किसको किसको देखने लगी थी वीडियो में। ज्योग्राफी के जो सुदर्शन गुज्जर है, गेस, तो भूल भी गई भाई, बहुत टाइम हो गया। सो ज्योग्राफी मुझे इतना अच्छा लग रहा था बिकॉज उनको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता था मुझे। उसके बाद सिद्धार्थ अरोड़ा करके भी कोई थे पॉलिटिक के, आई डोंट नो, मतलब सी इट्स जस्ट फ्रॉम लाइक माई मेमोरी दैट आई एम सेइंग। आई डोंट नो, कुछ भी अब मुझे याद नहीं है बिकॉज इट्स बिन टाइम। 2022 की बात है, 2022 की बात है, 2022 एंड 20। तो एक साल मैंने, मतलब एक साल भी नहीं यार, उसमें भी बहुत अनस्टेबल था। कोविड वाज सो अनस्टेबल। उस टाइम पे जो इमोशंस इधर उधर भाग रहे थे, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी। इट वॉज वेरी अनस्टेबल, इट वॉज केओटिक, डर लगता था, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत हुए, वेरी क्यूट। उसी टाइम मैंने तैयारी करना चालू किया था एंड लाइक कि अब तो निकाल के रहना। इतने सारे मोटिवेशन कोट चिपका के रखे थे मैंने। मेरी आदत है ऐसे कोर्स वगैरह चिपका के रखने की। सो आई वाज लाइक वेरी मच इनटू इट कि नहीं, अब तो इसी लाइन में जाना है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो बस यही है कि तैयारी करनी है। नहीं पता क्या होगा, लेकिन तैयारी करते हैं, ठीक है। तो अब ये था कि वापस से स्टार्ट हो गया कॉलेज, और वापस से जब स्टार्ट हो गया तो सब धरा का धरा रह गया। सारी प्रिपरेशन धरी की धरी रह गई। आई वेंट बैक। उसके बाद हो गया, अब था कि नहीं करना मुझे। अब इतना जल्दी चेंज हुआ सब बिकॉज आई वॉज सो मच इनटू इट उस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, कि तैयारी करनी है। एंड आई वॉज सो मच डिस्टेंस्ड फ्रॉम क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, लिटरेचर, कुछ नहीं। मतलब I did not, except for the first semester, I did not read any text. I did not read any literature text. सारा कॉपी पेस्ट करके एग्जाम में लिखा था, ऑनलाइन टेस्ट हुए थे। सो खत्म, सब खत्म। एंड बैचलर्स के एंड में आई वाज सो स्कैर्ड कि अब क्या करना है, मास्टर्स करना है या फिर कंपटीशन। नहीं, मास्टर, अब तो कंपटीशन से एकदम दूर भाग गए। हो गया मेरा यूपीएससी, कर लिया मैंने यूपीएससी। एक तो आई थिंक आई डोंट हैव दैट इन मी। I can be a consistent person, but then it is so much of kind of risky, right? वैसे तो पीएचडी भी कम रिस्की नहीं है। आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी पता नहीं, but it takes so much out of your life and you have to involve yourself for 2 to 3 years like proper कंसिस्टेंसी के साथ। यू डोंट हैव अ लाइफ, यू जस्ट हैव योर बुक्स, हैव योर कंप्यूटर, हैव योर व्हाटएवर, बस वही, और कुछ नहीं है जीवन में। मतलब आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग वेरी रिलीजियसली एक्चुअली, एंड आई रिस्पेक्ट देम अ लॉट। सो या दैट इज़ व्हाट आई हैव टू से कि कोविड जब ख़त्म हुआ तो वापस गए, हो गया मेरा ख़त्म, वो जर्नी ख़त्म हो गई, यूपीएससी ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने बोल दिया घर पे कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझसे होगा ही नहीं। एंड यू नो आई हैव ऑलवेज बीन स्केर्ड व्हाई ऑफ दिस आइडिया दैट 10 तक मुझे मेडिकल करना था, मैंने मेडिकल छोड़ दिया। 11 12 मैंने आईआईटी छोड़ दिया। उसके बाद ग्रेजुएशन भी छोड़ देते, मतलब लिटरेचर भी छोड़ देते, तो मुझे एक लग रहा था कि यार सब कुछ छोड़ दे। फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन वाला चीज़ भी छोड़ दिया। So it always feels like you are just leaving everything and you are not holding on to something for quite a time. You're not holding, you're just leaving everything, and I think that is what is life, right? पता नहीं कैसे कहाँ कब आपको कहाँ ले जाए। Yeah. सो आई थिंक दैट इज़ इट व्हाट आई हैव टू से, कि बस बहुत छोटा हिस्सा था। उसके बाद मास्टर्स में तो हाँ, व्हेन डिड आई स्टार्ट इन्वेस्टिंग टाइम इन लिटरेचर वाज ड्यूरिंग माई मास्टर्स ईयर्स।
and that, like, my masters I have spent figuring out things, like finding a space where I can just stand between these intellectuals. I mean, real or pseudo, whatever. So it's like it's been a struggle kind of, because academics, it's not that easy, and people who are in that pedestal in academics are actually, you can either be a good academician or a very bad academician, and there's also in between, I suppose. I don't know what am I saying, I'm so sorry, but what I feel is academics like demands your whole life. If जैसे मैंने mentally prepare खुद कर लिया है खुद को कि I want to study for the entire life, that's why, but हाँ, I need to get paid for it, of course. So I think this is what is academia. You'll have to invest throughout your life if you want to stay active in this academia. You'll have to invest time, you'll have to promotion चाहिए तो research papers होने चाहिए, ये वो फलाना ढमकाना. So yeah, and the thing is also कि academics is also very very much dominated by people who know how to speak, in that academic language, and these other people who are mostly uh, like, respected or something, and that is what is scary, because I sometimes I think it's hard to grab that academic language. Maybe it will take time, but yeah, that is what I felt. Masters ke baad I am not going back to UPSC, and even like if ever I do, I would want it, it should come from within, like किसी और के बोलने से नहीं, खुद से इच्छा होनी चाहिए कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई रियली वॉन्ट टू try at least once in my life. There's one friend of mine who who wanted to try, like even once in life she wanted to try it wholeheartedly. So yeah, that kind of attitude कि अंदर से आना चाहिए कि you want to attempt, पर उसके लिए भी इतना dedication चाहिए जो कि I don't know if I'll be able to give that much of dedication or not. Yeah, I think that is it what I have to say. I will stop blabbering now. If you have come till here, thank you so much. Like, मेरी कैमरा क्वालिटी ख़राब है, मैं बोल भी क्या रही हूँ मुझे खुद भी नहीं पता चलता, but if you have come till here, grateful for that. Thank you so much.